So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingle, and today we have to conduct the lecture number 13 of Engineering Thermodynamics. Okay, boys. So, in our previous lectures, what is we discuss? We discuss about the Boyle's law, Charles law, and by using the Boyle's law and Charles law, we have to prove the ideal gas equations or equation of a state or perfect gas equation. What is PV equal to mRT. Then after that we prove the universal gas constant values. Okay. Then molar mass. Then PV is equal to nRT equations. Okay. So all these things we already learned in our previous lectures. Okay. So today the new topic we have to discuss. So write down this topic. What is? It is a specific heat. Our today's topic is specific heat. Okay, this is our today's title, specific heat. So what is the definition of this specific heat? So look at boys here, very simple definition I have write down. It is shown by the letter C, symbol is C. So what is the amount of heat? The amount of heat is required. The amount of heat is required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. Okay. What is the definition? Very simple. The amount of heat is required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvins. Yes or no? Yes. This is called as a simple definition of a specific heat. मतलब बच्चों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हीट को सप्लाई कर रहे हैं. कितने मास को? यूनिट मास को. फिर बाद में उसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन्स. हम इसको अलग तरह से और लिख सकते हैं. ओके, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड राइज इन टेम्परेचर्स. राइज इन टेम्परेचर शो बाय द लेटर डेल्टा टी और डी टी, वट एवर यू राइट डाउन, योर ओन चॉइस. dt or delta t, whatever the symbol you write down. Means what is? The heat is directly proportional to the mass of a substance and rise in temperatures. So what is Q? So Q is equal to C into M into dt. Q means heat. Okay, what is the unit of the heat? It may be joule or kilojoule. Okay. Then another is a mass. Mass unit is, this is the M is mass. Mass measure in kg. Okay, then this dt means what is? Rise in temperatures. Okay, what is in degree Celsius or Kelvin? Yes or no? Yes. So this C means nothing but the specific heat. ये C क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए? Specific heat. Okay. So what is? I am write down once again. Q is equal to m dt. Q is equal to C m dt. अब ये स्पेसिफिक यूनिट का यूनिट क्या हुआ देखिए. C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डी टी. तो देखिए दोस्तों, C Q का यूनिट क्या रखा हमने? हीट सप्लाई. इट में भी जूल में लो या फिर किलो जूल में. अगर मैं जूल में लेता हूँ, जूल मास हमारा है केजी और ये डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन. सो व्हाट इज द यूनिट? इट इज जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी केल्विन, वॉट एवर्स. ओके, सो दिस इज द सिंपल यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक हीट फॉर विच कंडीशंस? फॉर अ यूनिट मास. मास कितना कंसिडर किया बच्चों हमने? यूनिट मास. मतलब देखिए, अभी हमारे पास में अगर कोई सब्सटेंस है,
अगर 1 kg का हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज ये हमारे पास में सब्सटेंस है, ओके, इसको मैंने हीट सप्लाई कर दी Q, बराबर है, Q हीट सप्लाई कर दी, तो इसका टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ जाएगा फॉर यूनिट मास के लिए, एक मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से, इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट बच्चों, ओके। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है, तो ये स्पेसिफिक हीट के कुछ क्लासिफिकेशन है, तो देखिए हम स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशंस। Okay, so this specific heat is classified into the two types. So what is the classification? One is the constant pressure specific heat. अब जैसा इसका बच्चों सिंबल C है, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा फिर Cp इसका सिंबल, yes or no? Yes. And another is constant वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, तो इसका बच्चों सिंबल क्या हो जाएगा फिर Cv, ओके। तो फिर ये जो स्पेसिफिक हीट है ये कितने टाइप में डिवाइड होगी, दो टाइप में, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो आइए दोस्तों हम डिफाइन करते हैं पहले कांस्टेंट प्रेशर। सो व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर is Cp. So what is the simple definition from this? Okay, whatever the definition I have done as it is, you write down here. So what is the amount of heat is required? Heat is required. The amount of heat is required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Kelvin, 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin or 1 Kelvin. Yes or no? Yes. सिंपल डेफिनेशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखना है हमारे को, देखिए एट अ कांस्टेंट pressure, okay, this is called as specific heat at a constant pressure condition Cp। मतलब देखिए the amount of heat is required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, but at which condition? At a constant pressure। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने एक कंटेनर ले लिया, राइट, we have to choose the one container, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, ओके, these are the molecules of a gas, ठीक है, याद रख, this is our substance, ठीक है। अब ये सब्सटेंस है, ये यूनिट मास के लिए मैंने अज्यूम कर लिया, सपोज यूनिट मास कितना हो गया इसका, यूनिट 1 kg हो गया सपोज यूनिट मास के लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं हीट सप्लाई करूँगा, सपोज इफ यू सप्लाई द हीट, द Q हीट इज सप्लाई, ओके, टू दिस सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन्स।
हाँ, अब इसको मैंने हीट सप्लाई कर दी बच्चों, ये सब्सटेंस को, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सपोज द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विल बी चेंज, ओके। सपोज दिस इज द आवर, सपोज दिस मच कंडीशन आवर इनिशियल वॉल्यूम V1, आफ्टर द हीट इज सप्लाई the volume of the substance will be changed. Suppose it change is like that, okay, the change will be this much. Suppose this is our V2 is final volume. Suppose there is any piston, so this piston will be moved from this position to this positions. अगर यहाँ पे पिस्टन अगर होगा तो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, मूव हो जाएगा। किसके वजह से, क्योंकि सब्सटेंस ने अपना वॉल्यूम क्या कर लिया, चेंज कर लिया। क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि इसको हमने क्या सप्लाई की, हीट सप्लाई की। यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, यहाँ तक हो गया बच्चों। लेकिन कंडीशन क्या है, द प्रेशर इट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे प्रेशर अगर होगा 2 बार, कुछ भी मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ 2 बार, जब इसका वॉल्यूम चेंज होके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इनिशियल वॉल्यूम है और ये बढ़ के अब यहाँ तक आ गया, ठीक है, सब्सटेंस का। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ गया तब भी प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, 2 बार ही रहेगा। प्रेशर में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं। इन द बोथ द केस द प्रेशर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो वेरिएशन इन द प्रेशर वैल्यू, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सिर्फ क्या चेंज हो गया बच्चों, वॉल्यूम चेंज हो गया। कहाँ से, V1 से V2 तक। अब वॉल्यूम चेंज हो गया मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने क्या किया, वर्डन किया। कहाँ पे वर्डन किया, सराउंडिंग में। ये सब चीज़ें हम, हमारा जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 2, उसमें हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये जो गैस है, दिस इज आवर सिस्टम, द सिस्टम इज डज द वर्क ऑन surrounding when you supply the heat cube, okay. How produce the work, because of the change of volume, the volume will be changed from V1 to V2, but what is their pressure, it should be remains constant. Such definition it is called as the constant pressure specific heat. तो फिर क्या फार्मूला आएगा बच्चों, Q is equal to m Cp इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर तो राइज हो गया उसका, तो फिर Cp बराबर क्या हो गया बच्चों, Cp बराबर हो गया हमारे पास में Q/m dt। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर kg केल्विन, या फिर जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस यानी कितना रहता बच्चों, 273 केल्विन रहता। ये अच्छे ध्यान में रखना सबने, 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन्स। So you write down Kelvin, no problem. You write down the degree Celsius, no problems. Okay. And this symbol C is replaced by Cp. Cp is equal to Q/m into dt. So this is the simple definition for constant pressure. Now we define now for constant volume. तो देखिए बच्चों, अब ये इसको मैं ऐसे के ऐसे रखता हूँ। देखिए अभी सिर्फ डायग्राम मिटा देता हूँ। हाँ, अब न्यू डेफिनेशन फॉर विच सिचुएशन, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट इज द सिंबल, Cv। अब इसके लिए देखो क्या डेफिनेशन आएंगी, एज इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Kelvin, 1 degree Celsius or 1 Kelvin at a constant volume conditions। यहाँ पे क्या आएगा अभी सिर्फ at a constant volume is called as a constant volume specific heat, ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या होगा, चेंज। वेरी गुड, मीन्स once again if you consider this system,
इसके अंदर कुछ भी हमारे पास में है, गैस मॉलिक्यूल्स वॉट एवर्स, okay, then what is we supply the heat will be there, the heat is supply, Q is supply, this is our substance, okay. So what happen here boys, when you supply the heat the substance only change the pressures, मतलब इसका अगर इनिशियल प्रेशर है बिफोर हीट सप्लाई 2 बार, जब हम इसको हम हीट सप्लाई करेंगे आफ्टर द हीट सप्लाई इसका प्रेशर हो जाएगा सपोज 5 बार, ओके, सपोज बता रहा हूँ मैं 5 बार में इंक्रीज द प्रेशर वैल्यू बट देर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बराबर क्या रहेगा इसका फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या बच्चों, नहीं, इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पीसीपी हीट। तो वंस अगेन व्हाट इज द फार्मूला वी हैव, Q इज इक्वल टू एम, अब यहाँ पे क्या आएगा CV dt, तो CV इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू dt एंड व्हाट इज द यूनिट वंस अगेन जूल पर kg केल्विन, ओके, यूनिट हर जगह पे क्या है सेम है बच्चों, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा क्या, नहीं, वॉल्यूम कभी भी चेंज होगा नहीं, अगर ये हमारे पास में अगर सिस्टम है इसको मैं अगर हीट सप्लाई करूँगा सपोज दिस वन, इसके प्रेशर में चेंज आ रहा लेकिन इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, ओके। अब यहाँ पे कोई वर्डन हो रहा क्या बच्चों, नहीं, वर्डन तो नहीं हो रहा, वर्डन कब होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा तभी वर्डन होता है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे हमारे अगले यूनिट के अंदर, ओके। सो देर इज नो एनी वर्डन इज विल बी हियर, सो यू शुड रिमाइंड वन थिंग, द वैल्यू ऑफ द Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, Cp हमेशा किससे बड़ा रहेगा, Cv से, ओके, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। And another relation you should be remember, Cp minus Cv is equal to R, Cp minus Cv is equal to R, ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है और इसको हम अगले हमारे लेक्चर में इसको प्रूव भी करेंगे हम अगले यूनिट में, ये कैसा R आता है यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी सिंपल। सो यू शुड बी रिमाइंड नाउ स्टेज ओनली दिस सिचुएशंस, Cp is greater than Cv, okay, Cp is why greater because there is a production of the work and Cv why less because there is no any work is produced, और ये जो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये डेरिवेशन हम हमारे अगले यूनिट में मतलब यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे, इसका शो दैट एकदम IMP है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कैसा आता है, वेरी वेरी IMP डेरिवेशन, इसको सिर्फ अभी आप ध्यान में रखिए, अगले यूनिट में मैं इसको अच्छे से आपको प्रूव करके दूंगा यूनिट नंबर 2 में, ओके। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ हमारे को डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके बॉयज, ओके। सो okay, so these are the simple explanations about the specific heat। अब यहाँ पे हमारा पहला यूनिट पूरा भी फिनिश हो गया, कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन विल बी completed and our remaining topic is our numericals, okay। So let's we start the numericals, now we discuss the first problem, so let's focus here, इसको मैं पहला भी मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हमारा पहला यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़े पहले यूनिट में। सबसे पहले हमने पढ़े डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, देन वी डिस्कस द थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, देन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, देन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके।
then we discuss the some definition, state, path, process, cycles, yes or no? Yes. Then after that what is we learn? We learn the topic is what is path function and point function. ओके, पाथ फंक्शन कौन से थे हमारे? हीट वर्क हमारा पाथ फंक्शन था. पॉइंट फंक्शन कौन सा था हमारा? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये हमारे पॉइंट फंक्शन थे. उसके बाद में उसके पहले हमने पढ़े फिर बच्चों वेरी आईएमपी डिफरेंस, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. ओके, देन लेटर ऑन व्हाट इज वी डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स, आइडियल गैस इक्वेशन और परफेक्ट गैस इक्वेशंस. ओके, then today is discuss the definition of the specific heats. So this is the our first unit syllabus. Okay, अब सेकंड जो पोर्शन है हमारा न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स हमारे को है बच्चों एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर. आपको सिर्फ दो फार्मूले याद रखना है. देखिए, यू शुड राइट डाउन दिस फार्मूले एंड वेरी आईएमपी फार्मूले रिगार्डिंग द ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. फर्स्ट फार्मूला इज Q इज इक्वल टू एम सी dt, मतलब C means Q upon m dt. This is the first formula you should know. Second formula is what is by the ideal gas equation, PV is equal to mRT. You should know these equations. Another formula you should be know. What is the formula? This number of moles is mass of gas upon molecular weight. This much formula. Another formula is what is universal gas constant. What is RU is equal to, it is a product of molecular weight into gas constants. Okay, so this much formula you should know. 1, 2, 3 and 4 boys. Okay, तो ये चार फार्मूले आपको अच्छे से पता होना. ये वाला अच्छे से देखिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला है? मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये स्मॉल क्या है हमारा? मास ऑफ गैस. और ये कैपिटल एम क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर वेट. ओके, ये जो आर है, ये आर क्या है? गैस कांस्टेंट है बच्चों. हाँ, दिस इज अ गैस कांस्टेंट. और ये जो आर यू है दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है, आपको पता है. द वैल्यू इज 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन्स. दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, so you should remind all these formulae. On these 4 formulae we have the numericals. okay, और न्यूमेरिकल कन्फर्म एक एग्जाम में रहता है. एक क्वेश्चन नंबर 1 में एक न्यूमेरिकल और बाद में उसके और में आता क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक न्यूमेरिकल्स. ओके, तो ये फार्मूले लिख लीजिए आप. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स. ओके, सो आई स्टॉप हियर. If you like my videos, so please share my videos with your friends, with your another college friends. Okay, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, so finally I am saying stay at home, stay safe. Thank you very much.